Hello, dear friends. Good evening, everyone, and again, welcome to my channel. It's Amrit History and Life, and myself, Amrit Kirketa. Today, I am going to teach you about the Khondaria Mahadev Temple of Khajuraho. So, before going to the lecture, please see the beautiful picture of this Khajuraho temple. See how beautifully they have made this temple, and I salute the architect who built this. Really impressive. So let's go for it. Okay, let's we'll know more about this temple architecture. So the introduction part. The Khondriya Mahadev temple is the largest, tallest and most ornated temple of the Khajuraho group of temple. That means खजुराहो में हम लोग का बहुत सारे टेम्पल देखने के लिए मिलते हैं, पर उन सभी में से जो टेम्पल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो टेम्पल सबसे टॉल है, ऊंचा है, लार्जेस्ट बड़ा है और सबसे खूबसूरत इसको ऑर्नामेंटेड किया गया है, बहुत अच्छा से बनाया गया है. ओके, द लोकेशन इट लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने के लिए मिलता है. इट रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर इन सेंट्रल इंडिया एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव. सो सेंट्रल इंडिया में एक बहुत अच्छा नागरा टेम्पल का एक एग्जाम्पल हम लोग के लिए सेट करता है ये. और ये टेम्पल किसके लिए बनाया गया है? लॉर्ड शिव के लिए बना गया है. इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव. So here we can see the different style of temple architecture. So major style of temple architecture in India. The first, as I have told you in my first lecture, that is the reason why I am not going to explain you more about it. So here in the top we can see the pictures of Nagara style of temple architecture, which is found mostly in northern part of Indian subcontinent. So these see the parts and person of Nagara School of Architecture. So you can and see them by pausing the videos. The next thing, the Dravidian style of temple architecture. See how Dravidian style of temple architecture looks like. So at the end we can see that, okay, so Gopuram, Mandapo, Garbhagriha, these three things are very very important. So Gopuram means the gate, Mandapo means the other mandapos, which we can see in the northern parts of Indian temple architecture, like Bhoga Mandapo, Nato Mandapo, this kind of Mandapo, and the Garbhagriha, how it is looking. So another temple is बेसरस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. बेसरस टेम्पल को हम लोग का बीच वाला जो टेम्पल हम लोग मैं पहले ही बताया हूँ, अलग वाला पहला वाला मेरा लेक्चर में जो कि हम लोग देख चुके हैं. बेसर मतलब क्या? बीच में जो है, यहाँ पे दोनों का थोड़ा थोड़ा हम देखने के लिए पाते हैं. नगौर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का भी कुछ इम्पैक्ट हम लोग यहाँ देखने के लिए पाते हैं, और द्राविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोग देखने के लिए पाते हैं. सो चलो, पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये खजुराहो टेम्पल का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. ओके, द खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 11th सेंचुरी. 11th सेंचुरी में ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ. अराउंड 1025 AD में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ और इट वॉज कम्प्लीटेड अराउंड 1050 AD. सो व्हिच डायनेस्टी was patronized this temple? Okay, this temple was patronized by which dynasty? Let's see. The Chandela dynasty was the patronor of this temple, and the king Vidyadhara was the patronor of this temple. The cultural context. The temple, इस temple का कुछ cultural context भी है, जरा देख लेते हैं. The temple reflects the political power, religious devotion and artistic excellence of the Chandela rulers. That means हम लोग का ये टेम्पल क्या क्या चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ओके, इट्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल पावर ऑफ दैट किंग और द चांदेला किंग. दे वर हाउ मच पावरफुल that they made this kind of magnificent temple during that time period. And it also shows us that their religious devotion towards their gods and goddesses, that okay, how much
they were religious oriented person, or that they expended that amount of money, huge amount of money, for the construction of this temple. Can you imagine? So this also gives us information about their religious devotions. Okay, and another thing and most important thing is that how much, okay, developed or excellent artist they had, that they made this kind of magnificent temple, which is a challenging thing for the modern architect as well. So this is the important thing. Okay, next we are going to study about the architectural style. Okay, so the architectural style of Nagara school of architecture. For example, here I have given, it will be easy for you. So see the different parts of the Nagara school of architecture. So you can pause the videos and you can watch properly. Okay, so see how it's looking. Okay, so the Khajuraho temple, the temple is made in Nagara style of temple architecture, and it is one of the most important example of Nagara school of temple architecture. The material which they used, okay, that is fine grained, okay, sandstone. That means they use the sandstone, and that is also fine grained sandstone, okay, that they have used. Okay, the plan, okay, panchayata type complex, मेन श्रीन विथ सब्सिडियरी श्रीन। जो इस टेम्पल का जो प्लान बनाया गया है पंचायतों को लेके बनाए गए हैं, पंचायतों और इंजीनियरिंग स्टाइल में ये लोग बनाए गए हैं। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कितना अच्छा टेम्पल बने हैं। लेआउट एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स, थोड़ा हम लोग का इसका लेआउट और इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स को हम देख सकते हैं। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ, okay, Khajuraho temple. I have given the layout and the name of the different parts of this temple. Okay, from the beginning you can start. Main, Sikhara, Adhisthana, etc., etc. There are many things, you can read it and note it in your copy. The temple is built on a high jagati. Jagati means what? जो ऊंचा पेंडल जैसे बनाए हैं उसके ऊपर में टेम्पल बनाए हैं, दैट इज जो ऊंचा बनाए हैं उसको हम लोग पीढ़ो बोलते हैं यार, और जगती बोलते हैं, और प्लेटफॉर्म भी हम बोल सकते हैं। एंड फॉलोज द क्लासिकल नागरो ग्रुप ग्राउंड प्लान। और ये लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए, ऊंचा बनाए, बेदी जैसे बनाए, उसके ऊपर में नागरो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बनाने का प्लेटफॉर्म ये लोग सजाए पहले, उसके बाद उसका टेम्पल का बेसमेंट स्टार्ट किए। सो अर्ध मंडपो एंट्रांस पोर्च, जब भी हम लोग एंट्रांस में जाते हैं तो पहला वाला एंट्रांस अर्ध मंडपो है कि नहीं। नेक्स्ट और मंडपो, मंडपो हम लोग देख सकते हैं, जो मंडप में एंट्रांस करते हैं तो वहाँ पे पिलर हॉल हमको देखने के लिए मिलता है। महामंडपो ग्रेट असेंबली हॉल देखने के लिए मिलता है और थोड़ा आगे जाने से, और थोड़ा आगे जाने से अंतराल, ओके, वेस्टिबुल हमको देखने के लिए मिलता है। गर्भगृह जो कि इंपॉर्टेंस है, सैंक्टम सैंक्टेरियम, ओके, हाउसिंग द शिवलिंग, और सैंक्टम सैंक्टेरियम में हम लोग क्या देख सकते हैं, शिवलिंग हम लोग देखने मिलता है हमको। ओके, शिखर एंड वर्टिकल एलिवेशन के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The temple has a towering curvilinear शिखर rising about 31 meters। ये टेम्पल का जो हाइट है, इसका जो टावर है, इसका जो शिखर है वो अराउंड 31 मीटर्स है, और सराउंडेड बाय 84 सब्सिडियरी शिखरस। और इसका जो शिखर के साइड साइड में और छोटे छोटे शिखर जो हम लोग देखे पिक्चर में, वो अराउंड टोटल 84 सब्सिडियरी शिखर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। क्रिएटिंग ए माउंटेन, ओके, लाइक माउंट कैलाश इफेक्टिव। हम लोग जानते हैं लॉर्ड शिव माउंट कैलाश के साथ उसका संपर्क कैसा है, उसका रिलेशन क्या है। सो एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू वो कार्व आउट, ओके, योर Kailash Mount in this in the form of this temple. That is the intention of the kings. Okay, symbolize the cosmic abode of the लिंगो। यहाँ पे जो हम देखते हैं लिंगो, वो लॉर्ड शिवो का प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है वो लिंग। The sculpture, the sculptural feature. Okay, the next important part is the sculptural feature. The most attractive part of this temple is the sculpture which they have carved out from the stone. Beautiful sculpture we can see here. So many beautiful different types of pictures are there, but I have given only one picture here.
The Khondaria Mahadev temple is renowned for its rich sculptural program. खंडरिया महादेव टेम्पल अपना स्कल्पचर के लिए ही बहुत ज़्यादा जाना सुना है। टाइप ऑफ स्कल्पचर, चलो हम देखते हैं यहाँ पे किस किस टाइप का, क्या क्या टाइप का यहाँ पे स्कल्पचर बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल भगवान लोगों का स्कल्पचर बनाए, व्हिच गॉड्स, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु, ब्रह्मा एंड सूर्य देवता का यहाँ पे स्कल्पचर बना हुआ है, हम जो कि हम देख सकते हैं। सेलेस्टियल बींग्स लोगों का भी यहाँ पे बनाए गए हैं। अप्सरा गंधर्वा लोगों का भी यहाँ पे पिक्चर हम देखने के लिए पाएंगे, पिक्चर या स्कल्पचर हम देखने के लिए पाएंगे। और कुछ तो सेकुलर सीन भी हम देखने के लिए पाएंगे। सेकुलर मीन्स व्हाट, व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, जिसको हम सेकुलर बोलते हैं। सो सेकुलर का भी हम लोग का कुछ कुछ स्कल्पचर देखने के लिए, फॉर एग्जांपल कोर्ट लाइफ, राजा का कोर्ट लाइफ के बारे में भी यहाँ पे कुछ स्कल्पचर देखने के लिए पाएंगे। म्यूजिशियन लोगों का भी देखने के लिए पाएंगे। डांसर लोग जो कि राजमहल में राज दरबार में डांस करते हुए मिल जाते हैं, उन सब का भी यहाँ पे डांसर लोग का भी ये मूर्ति हम देखने के लिए पाएंगे। एंड अनदर थिंग इज दैट एरोटिक मतलब जब भी आप लोग कभी टेम्पल गए हैं तो मोस्टली इन शिव टेम्पल यू कैन सी द नेकेड पिक्चर ऑफ डिफरेंट ह्यूमंस। सो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोटिक। इसका मतलब क्या है, ये नेकेड पिक्चर क्यों लगाते हैं यहाँ पे, क्यों रहता है, उसका मतलब क्या है, उनके बारे में मैं यहाँ पे अच्छा से बताया हुआ हूँ। ओके, सो ये नेकेड पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, एरोटिक बोलते हैं और मिथुन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो हम जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, ये हमको किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, फर्टिलिटी को हमको दर्शाता है। और क्या, कॉस्मिक क्रिएशन के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। एंड तांत्रिक फिलोसॉफी के साथ भी ये रिलेटेड है। नेक्स्ट इज दैट ओके, एरोटिक स्कल्पचर, पिक्चर और स्कल्पचर एक है। मीनिंग, उसका मीनिंग के बारे में ज़रा हम जानते हैं। स्कल्पचर्स ओके डिपिक्टिंग ह्यूमन इंटीमेसी, ह्यूमन का इंटीमेसी होते हुए और करते हुए सीन सबको यहाँ पे लोग कार्व आउट करके जो बनाए हैं उसको हम देख सकते हैं। और वो किसका सिंबल है, लव का सिंबल, डिज़ायर का सिंबल एंड सेक्सुअल यूनियन इन ए सिंबॉलिक एंड आर्टिस्टिक मैनर के बारे में हम लोग को ये इंफॉर्मेशन देता है। सो पर्पस इन टेम्पल, क्यों लगाए हैं, लगाना ही क्यों है यहाँ पे, उसके वो चीज़ सबको बस चलो जरा देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कामो, हम लोग का इंसान का ज़िंदगी में 4 चीज़ को लेकर के इंसान का ज़िंदगी बनता है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसॉफी। फॉर एग्जांपल जिसको हम 4 पुरुषार्थों बोलते हैं, और 4 पुरुषार्थों में एक पार्ट है कामो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेट्स सी क्या क्या है 4 चीज़, क्या क्या है 4 पुरुषार्थों। फॉर एग्जांपल धर्मो, अर्थो, कामो एंड मोक्षो, ये चारों को हम सेपरेट कर नहीं सकते हैं। ये चारों मिल करके ही इंसान का ज़िंदगी होता है, और ये चारों को ले करके ही ज़िंदगी जीते हैं जो वो हम लोग का क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है बोल के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ओके, सिंबल ऑफ क्रिएशन, फर्टिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और हमको ये और भी क्या इन्फॉर्मेशन आता है, सिंबल ऑफ क्रिएशन, फर्टिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, जिंदगी का जीवन का कंटिन्यूटी के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन ये देता है। ये सच है, इसको हम छिपा नहीं सकते, ये सब अब को हम छिपा के नहीं चल सकते, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। लेट्स नो अबाउट द फिलोसॉफिकल आइडिया दैट ओके स्पिरिचुअल लिबरेशन इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस ऑफ वर्ल्डली लाइफ। हम लोग का जरा देखते हैं ये पिक्चर के बारे में फिलोसॉफी क्या कहता है। फिलोसॉफी कहता है जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, वर्ल्डली लाइफ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, नॉट ओके प्रोमोटिंग पोर्नोग्राफी, यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पोर्नोग्राफी को हम लोग प्रोमोट कर रहे हैं। टेम्पल में पोर्नोग्राफी को, या ये जो पिक्चर पोर्नोग्राफी को इंडिकेट नहीं करता है। दे आर ओके सिंबलिक, ये सब सिंबलिक है, रिचुअलिस्टिक है एंड ओके एस्थेटिक, नॉट मीन टू ओके अराउज, ये हम लोग को किसी को उत्तेजित करने वाला चीज़ नहीं है। लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टेम्पल। हाई रिलीफ कर्विंग, ये टेम्पल को बहुत हाई रिलीफ कर्विंग किए हैं, बहुत ही सुंदर देखने के लिए मिलता है, बहुत रिलीफ लगता है इनका जो कार्व किया हुआ स्कल्पचर सब है। ग्रेसफुल मूवमेंट एंड सेंसस एक्सप्रेशन, यहाँ पे ग्रेसफुल मूवमेंट हम देख सकते हैं और बहुत अच्छा से सेंस को ये लोग
एग्जाम्पलीफाई किए हैं यहाँ पे। सो परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ल्डली लाइफ, यहाँ पे ये लोग परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इन स्पिरिचुअलिटी को भी ये लोग उतना ही दर्शाएं जितना चाहिए, और वर्ल्डली लाइफ को भी जितना ही दर्शाएं जितना चाहिए। यहाँ पे रिलीजियस एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, यहाँ पे हम लोग दोनों देखने के लिए पाएंगे, रिलीजियस और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। एरोटिक स्कल्पचर्स सिंबलाइज यूनियन ऑफ पुरुषों एंड प्रकृति, जो हम जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बता दिए हैं हम लोग। रिफ्लेक्ट तांत्रिक बिलीव एंड द आइडिया दैट स्पिरिचुअल लिबरेशन इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन डिज़ायर, जो इसके ह्यूमन डिज़ायर के बारे में भी हमको एरोटिक स्कल्पचर दर्शाता है। एंटर टेम्पल एक्ट एज ए कॉस्मिक डायग्राम, और अगर देखेंगे तो एक एंटायर टेम्पल एक कॉस्मिक डायग्राम की तरह हम लोग को वो दर्शाता है और दिखता है। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो एज वी नो दैट दिस खंडरिया महादेव खजुराहो टेम्पल इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो when it was given, how it was given, let's know it. The Khajuraho group of monuments was declared UNESCO World Heritage Site. यहाँ पे एक टेम्पल को दिया गया वैसे नहीं है, वहाँ पे जितना भी ग्रुप ऑफ टेम्पल है उन सारे टेम्पल को ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया है, और ओके इट वाज रिकॉग्नाइज इन द ईयर 1986 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। खंडरिया महादेव टेम्पल इज द फाइनेस्ट एंड मोस्ट complete एग्जाम्पल ऑफ दिस हाई ग्रुप। ओके, सो ये जितना भी ग्रुप है उनमें से सबसे अच्छा अट्रैक्टिव सुंदर कोई है तो खंडरिया महादेव टेम्पल है। Importance in Indian art and architecture, and it is also very very important in Indian arts and architecture. Represent the zenith of नागौर आर्किटेक्चर, और एक किसका रिप्रेजेंट करता है, नागौर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का टॉप कैसे हो सकता है, अगर कोई पूछे तो हम किसको बता सकते हैं, यही हम लोग का खजुराहो टेम्पल का हम लोग दिखा के बोल सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है नागौर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का टॉप मोस्ट पीस। ओके, हाउस ओके shows mastery in stone carving without ओके मोटर। तो उस टाइम मोटर नहीं था, कटर मशीन नहीं था, फिर भी ये लोग इतना अच्छी तरीक़ा से इतना परफेक्ट वे कट करके ये टेम्पल को बनाए हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाए हैं, ये सब किए हैं जो वो यूनिक चीज़ है। ओके, डेमोन्स्ट्रेट द ओके सिंथेसिस ऑफ रिलीजन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो इन सारी चीज़ों के लिए इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। दीज आर द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर इट। कंक्लूजन, द खंडरिया महादेव टेम्पल स्टैंड एज ओके मोन्यूमेंटल टेस्टिमनी टू द मेडिएवल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। हम लोग का मेडिएवल इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर का एक जीता जागता एग्जाम्पल है ये टेम्पल, बहुत अच्छा टेम्पल। ओके, इन आर्ट, इन कल्चर, इन स्कल्पचर, इन ऑल राउंड ओके डेवलपमेंट वी कैन सी इन दिस टेम्पल, रिफ्लेक्टिंग द आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। यहाँ पे हम लोग एक झलक देखेंगे आर्टिस्ट का कितना ब्रिलियंस था, कितना रिच आर्टिस्ट दे वेर। ओके, अबाउट दैट हियर वी कैन सी ए सैम्पल। रिलीजियस डेप्थ, एंड वो राजा लोग कि उस टाइम का लोग कितना रिलीजियस में डेप्थ रहते थे, कितना बिलीव रहता था, उनका डिवोशन कितना था, उनके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन ये देता है। एंड कल्चरल रिचनेस, और उस टाइम का कल्चर कितना रिच था उसके बारे में भी हमको ये टेम्पल इन्फॉर्मेशन देता है। द चांदेला पीरियड में ये सब कैसा था उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। इट रिमेन्स वन ऑफ द ओके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया ओके इंडियन स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल ओके ट्रेडिशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं यार कितना अच्छा स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल सेट करता है हम लोग का इंडिया में, नागौर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। सो डियर फ्रेंड्स, आई हैव मेड सम इम्पोर्टेंट MCQs okay on the basis of above description, okay, and these questions are very very important on the basis of examinations point of view. So all of you please carefully read or see the video till last. It will be very very important, and your examinations okay many questions come from this chapter. So the first question is, the Khandaria Mahadev temple is located at
The option B, right option is B, okay, Khajuraho. The second question, the Khandaria Mahadev temple was built under which dynasty? The right option is option B, Chandela. The Khandaria Mahadev temple is dedicated to who? The right option is option D, Lord Shiva. The question number 4, the temple belongs to which architectural style? The right option is option C, the Nagara school of architecture. The Khandaria Mahadev temple was constructed during the reign of Dash king. Okay, which king? The right option is option C, okay, Vidyadhar. Question number 6, the main tower or sikhara of the temple is, okay, in which shape? Okay, the right option is C, curvilinear or rekha shape. The highest point of the main sikhara of Khandaria Mahadev temple is approximately around, okay, 31 meter, or the option D is the correct answer. The next question, the temple complex stand on a raised platform, okay, known as dash. The right option is Jagati, option C. Question number 9. The construction technique used at Khajuraho temple mainly, okay, involve, the right option is D, okay, mortise and tenon joints without mortar. That means यहाँ ये लोग वो जॉइंट करने का टेक्निक को यूज करके किए हैं। यहाँ पे कोई सीमेंट नहीं, आटा नहीं, कुछ भी यूज नहीं किए हैं, गम नहीं यूज किए हैं, बट दे इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम से लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सब्सिडियरी मिनिएचर टावर सराउंडिंग द मेन शिखर आर कॉल्ड। द राइट ऑप्शन इज डी, उरुश्रृंगस, उरुश्रृंगस। Question number 10, the erotic sculpture at Khandaria Mahadev temple symbolize. The right option is C, fertility and cosmic creation. Question number 12, the Khandaria Mahadev temple presents the, right option is zenith of Nagara temple architecture. Question number 13, the temples of Khajuraho are mainly constructed of, the right option is D, sandstone. The Khajuraho group of monument was declared a UNESCO World Heritage Site in the year, the right option is C, 1986. Question number 15 and the last question. The Khandaria Mahadev temple is especially famous for it. The right option is D, rich sculptural decoration on exterior wall. So thank you so much dear friends for watching my videos, and one request, please like, share and subscribe my channel, and also comment in my video. Thank you so much for listening me. Thank you one and all.